Hello students, welcome to NCRT class of English. Today we are going to do a chapter of Unit 5. This chapter is a very inspiring story about Helen Keller, who was blind and deaf but very much determined. It always takes much courage for any person to achieve success when he or she is disabled. One cannot imagine the agony of a person who cannot actually use their entire body or cannot do things like us. Though she was deaf and blind, she became a great American author and educator. Her education and training represents an extraordinary accomplishment in the education of persons with these disabilities. So dear students, a very inspiring and motivational story of Helen Keller. She is Helen Keller. Yes, you can have a look. She was blind, she was deaf, she was disabled. Now what do you understand by the term disabled? हम बार बार डिसेबल्ड बोलते हैं, बट डिसेबल्ड मतलब क्या है? डिसेबल्ड मीन्स दैट अ पर्सन इज़ नॉट एबल टू डू समथिंग. इट इज़ नॉट द एक्चुअल मीनिंग. डिसेबल्ड का मतलब होता है ऐसे पर्सन जो चीज़ों को अलग तरह से करते हैं. मीन्स ability to do the things in a very different manner when their body parts, either the entire body or some parts, are not working as a normal person. So आप ऐसे लोगों के बारे में सोच भी नहीं सकते हो जो काम एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं कर सकते. इट इज़ वेरी टफ. इट रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग विल एंड करेज. So now we will begin the story here. Yes, open the page, students. Helen Keller. It was the summer of 1880. So the season was summer का season था, and the year 1880. A healthy baby girl was born in a small town of Alabama. एक हेल्दी बेबी, हेल्दी मीन्स बिल्कुल तंदुरुस्त बेबी, दैट वॉज बॉर्न, उसने जन्म लिया. कहाँ पे? एलाबामा. एलाबामा इज़ अ टाउन इन यूनाइटेड स्टेट्स. हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली. नाउ हियर लुक एट द वर्ड डियरली. डियरली मीन्स वेरी मच. हर पेरेंट्स loved her very much and named her Helen Keller. But one day the baby became ill and day after day her fever stayed high. एक दिन वो छोटी सी बच्ची वो बीमार हो गई. शी वॉज इल. और जैसे जैसे दिन जा रहे थे उसका जो फीवर था इट वॉज रिमेनिंग. इट वॉज लाइक इंक्रीजिंग डे बाय डे. एवरीवन इन द फैमिली ट्राई टू हेल्प हर टू गेट बेटर. फैमिली में हर जो इंसान था सब हेल्प कर रहे थे सो दैट द बेबी कुड रिकवर फास्ट, बेबी कुड बी बेटर. बट ऑल दे कुड से वॉज देयर इज़ नथिंग मोर वी कैन डू, द बेबी मे नॉट लिव. बट नाउ एवरीवन वॉज डिसअपॉइंटेड. सब निराश हो गए. वाई? बिकॉज शी वॉज नॉट रिकवरिंग. एट लास्ट फाइनली उन्होंने क्या कहा कि हम अब कुछ भी नहीं कर सकते, जितना करना था हमने कर लिया. नाउ द बेबी मस्ट नॉट लिव. अब ये बच्ची बच नहीं पाएगी. हेलन लिव्ड बट हेलन सर्वाइव्ड. बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस. बट वेन शी रिकवर्ड ऑफ राइट, जैसे वो अपने बीमारी से बाहर आई, वेन शी रिकवर्ड शी वॉज नॉट नॉर्मल, शी वॉज डिफरेंट. Something is very wrong, her mother said. Now, she was different, that means something was wrong. कुछ गलत है, उसकी मॉम बोली. At last they found out what was wrong. और फिर फाइनली उनको पता चला कि क्या गलत है. मीन्स इतने दिन की बीमारी के बाद अब उसके अंदर क्या गलती हो गई है. मीन्स वेयर शी वॉज रॉन्ग. द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर. So now the problem was that जो little baby है she was not able to see, देख नहीं पाती है, इनफैक्ट वो सुन भी नहीं पाती है. The baby grew into a little girl. अब वो बड़ी हो गई.
She was a girl. Her parents felt sorry for her. Parents, mother and father, they're always concerned for the children. So यहाँ पे भी हेलन के पेरेंट्स उसके लिए बहुत फील करते थे, उसके लिए बहुत दुख होता था. हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर. हेलन एज शी वॉज नॉट एबल टू सी, नॉट एबल टू हियर, तो उसको पता ही नहीं था कि वो क्या कर रही है. सो शी ऑफन क्राइड, वो हमेशा रोती रहती थी और अपने मॉम के साथ ही रहती थी. गिव द पुअर चाइल्ड वॉट शी वॉन्ट्स, हर फादर वुड से. एंड एट दैट टाइम हर फादर who loved her very much said, don't let her cry, means उसको रोने मत दो, उसको जो चाहिए वो उसे दे दो. And this was always the father used to say. Though Helen could not hear or see, she was a bright girl. See, now the disability, what is the disability? What she can't do, she can't hear, she can't see. But though she was a bright little girl, that means she was very intelligent little girl. Some people thought हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग. कुछ लोगों ने ऐसा सोचा कि हेलन कभी कुछ सीख ही नहीं पाएगी. बट हर मदर डिड नॉट एग्री. तो हियर हर मदर वॉज वेरी डिटरमाइंड. शी शोड स्ट्रॉन्ग विल दैट हेलन कैन डू समथिंग, कैन लर्न समथिंग इन लाइफ. हेलन इज़ वेरी स्मार्ट. उस मॉम को ऐसा लगता था कि यस, हेलन बहुत ही स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है और हेलन कर पाएगी. शी वुड एबल टू रीड. She said and added, the problem is how can we reach her. उसकी मॉम ने ऐड किया, मीन्स ये बोलने के बाद कि हेलन इज़ वेरी स्मार्ट, शी कैन डू, बट नाउ व्हाट इज़ द प्रॉब्लम हियर, हाउ कैन वी रीच हर, मीन्स हम उसको कैसे सिखा सकते हैं कि वो पढ़ पाए. शी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ. हियर see this sentence means a lot. She is locked up inside herself means ऐसी बच्ची जो सुन नहीं पाती है, जो बोल नहीं पा रही है, मीन्स जिसको सुनाई ही नहीं दे रहा है, उसको हम कैसे सिखा सकते हैं. वो तो अपने अंदर अपने आप को बंद कर दिया है. शी इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस. अब सिंस लाइक बर्थ, जब कोई छोटा बच्चा होता है वो बोलना कैसे सीखता है, वो किसी को सुन के बोलना सीखता है. बट हेलन आफ्टर हर बर्थ शी वॉज डेफ. उसने कभी अपने मॉम को सुना ही नहीं, अपने डैड को सुना ही नहीं, किसी की बात सुना ही नहीं, तो उसको पता ही कैसे चलेगा कि क्या बोलना है. दैट शी कुड एबल टू स्पीक. तो दो शी वॉज ब्लाइंड, शी वॉज डेफ, सॉरी, एंड शी वॉज डम, राइट. वो सुन नहीं पाती थी, वो देख नहीं पाती थी. नाउ शी बिकेम डम. वाई? बिकॉज शी वॉज नॉट एबल टू स्पीक ऑल्सो. हेलन began to grow wild. जैसे जैसे हेलन बड़ी हुई, she began to grow wild. Here the word wild means something that when you are not tamed to do something, when you are not trained to do. That means when you are not disciplined or you don't do things in a manner way. That means you are wild. तो हेलन भी धीरे धीरे वाइल्ड होती गई. She would not let anyone comb her hair. Her clothes were always dirty. Now look, वो कभी किसी को कंघी करने नहीं देती थी, उसके कपड़े हमेशा गंदे रहते थे. She was often angry. उसे गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता था. Sometimes she even lay on the floor and kicked her feet. ठीक है, तो जैसे हर छोटा बच्चा करता है, वो ज़मीन पे लेट जाती थी. Lay on means ज़मीन पे लेट जाना, and kicked her, और पैरों को ज़ोर से फ्लोर पे किक करना. Her parents thought that they should find a teacher. Now finally the parents came to something, and what was that? To find a teacher for her. Means एक टीचर उसके लिए ढूंढ के लाए जो उसे ट्रेन करे, जो उसे सिखाए. Miss Sullivan, a young teacher, agreed to help Helen. Now who is the teacher? Miss Sullivan. She was a young teacher and she agreed. Agreed means of the same opinion. तो means शी एग्रीड, लाइक उसने भी बोला कि नहीं यार, हेलन को सिखाना है, हेलन को पढ़ाना है, तो वो तैयार हो गई हेलन को सिखाने के लिए. लर्न टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड. मिस सुलिवान गेव हेलन अ
doll. Now how she actually taught her? So first what she did, she gave Helen a doll. उसने एक गुड़िया उसके हाथ पे रख दिया. Miss Sullivan gave Helen a doll. Doll, D-O-L-L, spells doll. She spelled the word with her fingers into Helen's head. She made the letters with special hand and signs. Now, see how she was actually teaching her. Helen को सुनाई नहीं देता था, Helen को दिखाई नहीं देता था. Now what she did? She started writing the letters on her hand. उसने हेलेन का हाथ लिया और हेलेन के हाथ में ऐसे उसने फिंगर से D-O-L-L doll लिखा. Helen copied her teacher. Now as we know that Helen, she was a very bright girl. She copied her teacher. उसने अपने टीचर को कॉपी करना शुरू किया. And spelled D-O-L-L. और उसने स्पेल किया D-O-L-L. But she did not understand what she was doing. But this was the first time, so she was not able to understand what is actually going around. Helen liked Miss Sullivan. So she was very much attached to her teacher. She was strict but kind. Miss Sullivan, she was strict, kadak thi, but she was soft-hearted also. She spelled a lot of words for Helen on her hand. मिस सुलेवान स्पेल्ड मीन्स बहुत सारे वर्ड्स उन्होंने हेलन के हाथ पे लिख के उसको सिखाया. डे एंड नाइट टू मेक हेलन अंडरस्टैंड. हेलन को समझाने के लिए उन्हें बहुत सारे वर्ड्स हेलन को सिखाए. वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर. नाउ वन डे, एक दिन की बात है, हेलन के टीचर ने हेलन के हाथ को रनिंग वाटर मीन्स बहते हुए पानी में डाल. देन शी स्पेल्ड W-A-T-E-R सडनली. फिर उन्होंने जैसे ही पानी में हेलन का हाथ रखा और उसके ऊपर उन्होंने स्पेल किया W-A-T-E-R. सडनली हेलन अंडरस्टूड दैट वाटर. और हेलन को तुरंत पता चल गया कि ये वाटर है. एंड व्हाट इज़ वाटर? वाटर मीन्स समथिंग वेट रनिंग ओवर हर हैंड. नाउ व्हाट शी वॉज लर्निंग? शी वॉज लर्निंग टू नो द ऑब्जेक्ट्स. जो भी सराउंडिंग्स के ऑब्जेक्ट्स है उसको छू के अब उसको पता चलता था कि ये क्या है. हेलन को अब ये पता चला कि वाटर क्या है? एक ऐसी चीज़ जो वेट होती है और जो आपके हाथ पे हो तो वो बहती ही रहती है, रनिंग है. शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ. यहाँ पे हेलन को पता चला कि वर्ड्स जो होते हैं दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड. अगर आपको इस वर्ल्ड में रहना है तो यू नीड टू नो द वर्ड्स. वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो एंड दिस इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ द वर्ड्स. ये वर्ड्स ही है जो हेलन को हर एक चीज़ जो उसको जानना है वो बताएगा. एंड दिस इज़ हाउ शी स्टार्टेड लर्निंग. So do you know what actually the method or this way of teaching is known as? ठीक है बच्चे, जो भी डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, जिनको सुनाई नहीं देता है, जिनको दिखाई नहीं देता है, स्पेसिफिकली जो ब्लाइंड होते हैं, उनके लिए ये टीचिंग सिस्टम है जिससे वो पढ़ सके. एंड दैट सिस्टम इज़ नोन एज द ब्रेल सिस्टम. इसको क्या बोला जाता है? ब्रेल लर्निंग. BRAILLE ब्रेल लर्निंग. ठीक है. सो थ्रू ब्रेल लर्निंग वी कैन एक्चुअली टीच द स्टूडेंट्स or the person who is not able to see, right? So this is a very beautiful motivational story. Now we will look into the hard words. The very first hard word is dearly. Now what the word dearly means? Dearly means very much. हमने देखा था चैप्टर में. Dearly means very much. Very much means बहुत ज़्यादा. आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो. फॉर एन एग्जाम्पल सेंटेंस, ही लव्ड हिज मदर डियरली. ठीक है, वो अपने मॉम को बहुत लव करता है, वेरी मच. ही लव्ड हिज मॉम वेरी मच. नाउ द सेकेंड वर्ड दैट इज इलनेस. इलनेस मीन्स सिकनेस. जब आप बीमार हो जाते हो दैट मीन्स यू आर इल. नाउ द थर्ड वर्ड इज एग्रीड.
एग्रीड मीन्स ऑफ द सेम ओपिनियन, मीन्स आप अगर किसी के साथ सहमत हो, दैट मीन्स यू आर एग्रीड. So when the person is agreed to someone, that means the opinion of both the persons are same. Now the last word, that is important. Important means of a great value. जो चीज़ आपके लाइफ में important है, that means it has a great value in your life. If I suppose say, yes, mathematics is an important subject, that means mathematics has a great value. As a subject, it has a great value. So dear students, here we end our chapter. Now we will meet in the another video with another unit, a new unit. Till then, have a great day.